Going Places by A.R. Barton is a short story about adolescent daydreaming and fantasizing. It outlines the story of Sophie, a teenage girl with a wild imagination and unrealistic expectations in her life. Before reading the whole story and its explanation, let us talk about the title of the story, Going Places. If we consider going places, these two words separately, then it gives a meaning that somebody has to go to some place or maybe different places. But going places, in fact, is a phrase which means becoming increasingly successful. In this context, that is a story's context, if we consider Sophie, who is the chief character of this story, she is a girl, adolescent in her age, and she dreams to be extremely successful in her life. Although she belongs to a middle class family, but still her dreams are so high that she, after finishing her school, wants to open a boutique, or she wants to become a part time actor, or she wants to become a manager in a company, or a fashion designer. So, in this way, she dreams of having sophisticated career, a high class career, whereas her father is a workman in the biscuit factory. And therefore, the title is quite relevant here because it talks of the dream of achieving success in her life by an adolescent child or an adolescent girl who belongs to a middle class family. Now, directly I come to the story part. Sophie, she is coming home from school and her friend is with her. And there she tells her friend Jancy, her name is, linking her arms with her. She tells that when she completes her schooling, she would like to open a boutique. Jancy, although she too is a teenager, but she is a practical girl, although she must be having her own dreams, but still she is not a wild dreamer, and therefore she reminds Sophie that this kind of business requires lots of money, and where will she get it from? In response to this, Sophie says that she would become a manager in the company and thus save that much money to buy a boutique or to own a boutique. And when she does it, she would become like Mary Quant, who was a famous fashion designer. And further, she says that I will be unnatural. I will be unnatural is another idiom which means that if something is done a natural way, it means that it is done extremely well and it is done very easily. तो सोफी कहती है कि वो एक मैनेजर बन करके कुछ पैसे इकट्ठे करेगी और वो एक बुटीक खोलेगी मैरी कॉन्ट की तरह और उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से बहुत ही आसानी से चलाएगी, बहुत नेचुरली चलाएगी और वो शहर में एक अमेजिंग एक वंडरफुल शॉप बनाएगी और खोलेगी। जैनसी जो कि जानती है कि ये लोग सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री के लिए ही बने हैं। ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, शी सेज, which means that this work is reserved for them. They are made for this work only. Because she better knows the limitations of that middle class family which she belongs to. And therefore, when Sophie speaks like this, she becomes melancholy or sad. उसको समझ में आ रहा है कि सोफी ये unnecessarily ऐसी चीज बोल रही है जो कि फुलफिल नहीं होने वाला है, ऐसा ड्रीम, और इसलिए वो कुल मिलाकर के बाद में फ्रस्ट्रेशन ही जनरेट करेगा। तो सोफी के बाद से उसको उदासी ही होती है, उसको बहुत प्रसन्नता नहीं होती है। सोफी को वो फर्दर वार्न भी करती है कि वो जस्ट स्कूल के बाद मैनेजर नहीं बनाई जा सकती, बिकॉज टू बिकम अ मैनेजर इट रिक्वायर्स अ क्वालिफिकेशन विच यू हैव नॉट कंप्लीटेड एंड देयरफॉर शी कैन नॉट बी मेड अ मैनेजर स्ट्रेट अवे। बट स्टिल सोफी के दिमाग में अभी भी वही है सारी चीजें, और वो कहती है कि अगर ये नहीं तो वो एक पार्ट टाइम एक्ट्रेस बनेगी, और पार्ट टाइम एक्ट्रेसेस को काफी बढ़िया अमाउंट पे किया जाता है, और इस तरीके से वो किसी न किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनेगी और एक अपना बुटीक खोलेगी। ऐसा ये लोग बात कर ही रही थी, तभी सोफी का अपना घर आ जाता है और फाइनली वो अपने घर में घुसते घुसते ये स्टेटमेंट देती है कि इफ आई एवर कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। मतलब कि जब भी मेरे पास पैसा होगा तो मैं अपना एक बुटीक खोलूंगी। ये बात उसके फादर, जो कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, वो तब तक घर आ चुके थे और खाना खा रहे थे, खाने की टेबल पे बैठे हुए थे, वो सुन लेते हैं और व्यंग से उसको कहते हैं कि इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। थैंक यू वेरी मच। तो वो व्यंग से ये कहते हैं कि अगर
तुम्हारे पास किसी भी तरीके से पैसे आ ही जाएं, और उसको रिपीट किया इसी बात को, तो बेहतर है कि हम लोगों के लिए एक बढ़िया सा डिसेंट घर रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। कुल मिलाकर के इनके जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो था उसके बारे में भी ये प्रकाश डालता है। इट थ्रोज लाइट ऑन द इकोनॉमिकल or financial condition of the family which Sophie belongs to, that they are poor people and they do not have a decent, nice house to live in, even. That is, they are devoid of basic amenities in their life, but still she is dreaming so high that either she would become an actress or a manager, and she would become a wonderful fashion designer, and she would start up her own boutique. Sophie's father, he is taking food, he was taking shepherd's pie, and her face could be seen that it has mark of the day work. Again, it shows unsophistication of the family. And when he makes this remark, even bitter remark is made by the younger brother of Sophie. He speaks that Sophie thinks that money grows on trees. वो ये रिमार्क करता है कि सोफी सोचती है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, और उसकी मदर ने भी हालांकि शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ उसने एक गहरी सांस भरी। देयर मदर साइज टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ, और उस गहरी सांस में ही उन्होंने ये लगभग कह दिया कि ये लड़की नहीं सुधरने वाली। तो कुल मिलाकर के जब सोफी अंदर आती है अपने घर में, तो वो अपने फादर का व्यंग्यमाण सहती है। उसका ब्रदर भी उसको टॉन्ट ही करता है, और उसकी मदर कुछ न कह कर के भी सब कुछ कह देती है। और इस तरीके से वो अपने घर के जो इनसाइड के सीन है, जिसमें उसका फादर वो घर में गंजी पहने हुए खाना खा रहा है, एक तरफ उसकी मदर किचन में कुछ उसी वो मतलब जो कमरा है वो किचन की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर के एक ही कमरा, उसमें फादर खाना भी खा रहे हैं, उसका छोटा भाई डेरेक भी है, मदर खाना भी बना रही है, और स्टोव के स्टीम से वो जो विंडो पेन है वो भी काली हो चुकी है, एक तरफ बर्तन भी पड़े हुए हैं। Overall, in these circumstances, Sophie felt tightening in her throat. She felt as if she stayed there, she would गेट सफोकेटेड। तो सोफी का दम घुट रहा था, और इसलिए उसने उस कमरे को छोड़ करके अपने भाई के कमरे में शरण लिया। उसका भाई जोफ उससे बड़ा था, और लगभग 3 साल से स्कूल छोड़ करके वो एक मैकेनिक की शॉप पे अप्रेंटिस का काम कर रहा था। चूंकि जोफ भी टीन एज को ही बिलोंग करता था, इसलिए सोफी का सबसे नजदीकी अगर वो अपने परिवार में कोई था तो जोफ था, क्योंकि वही एक ऐसा था जो कि टीन एज की समस्याओं से, उसके सपनों से परिचित था। खासतौर से उस दौर के जो टीन एजर्स की समस्याएं थी, जो उनके ख्वाब थे, उनके ड्रीम्स थे, वो सारे सपने वो भी जिया करता होगा। तो सोफी के लिए अगर कोई सबसे बढ़िया मित्र हो सकता था उसके परिवार में, वो तो जोफ ही हो सकता था। तो सोफी उसके कमरे में चली गई, और वहां पर उसने देखा कि उसका भाई एक न्यूज़पेपर पे कुछ मोटर के पार्ट्स बिछा करके उसके ऊपर रख करके कुछ उसमें खटर पटर कर रहा था, कुछ टिंकरिंग कर रहा था। क्योंकि जोफ 3 साल से घर से काफी दूर जाता था, और उसको ये लगता था कि वो कुछ ऐसे एरियाज में जाता है और कुछ जीवन के ऐसे पहलुओं से, ऐसे एस्पेक्ट्स से वो परिचित है जिसको वो नहीं जानती थी। लेकिन वो अपने सपने में, अपनी फैंटेसीज में ये देखा समझती थी, सोचती थी कि वो दुनिया काफी रंगीन होगी, दैट वर्ल्ड विल बी क्वाइट ब्यूटीफुल, एंड इन दैट वर्ल्ड वेयर जोफ हैज द एक्सेस टू मस्ट बी dwelt with a lot many exotic people, nice people, aristocratic people, fashionable people, and she wanted to know about them, and she wanted to be a part of all that. But since Jeff never talked to her about that world, so that world just simply had a structure in her mind in the form of a colorful world in her imagination. और उसकी कल्पना की दुनिया में वो एक बहुत ही रंगीन दुनिया थी, और वो चाहती थी कि जोफ उसके बारे में बताए और उसको ले भी जाए। लेकिन जोफ का एक नेचर था, ही वॉज अ वेरी साइलेंट सॉर्ट ऑफ बॉय, ही रेयरली स्पोक। सोफी फेल्ट दैट ही शुड से समथिंग, ही शुड स्पीक समथिंग, बट ही वॉज द बॉय हु नेवर स्पोक। सच अ साइलेंट बॉय ही वॉज दैट द वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और therefore Sophie was jealous of his silence. When he was not speaking, it
was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. तो वैसी दुनिया के बारे में जो कि वो सपने में सोचती थी कि रंगीन दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है, और वो उनके बारे में बतलाता नहीं था, तो उसका अट्रैक्शन और उसका फैसिनेशन उसके प्रति और भी बढ़ता जाता था, और उसके आउट ऑफ रीच होने के कारण वो उसका डिजायर उनके प्रति और भी स्ट्रांग होता जाता था, स्ट्रांग एंड स्ट्रांगर होता जाता था। वो सोचती थी कि वाकई में वो ऐसी ही दुनिया के लिए बनी हुई है जिसमें एग्जॉटिक पीपल, इंटरेस्टिंग पीपल रहा करते हैं, और वो अपनी समझ से ये सोचती थी कि ऐसी दुनिया में वो बिल्कुल भी एकदम आराम से फिट हो जाएगी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। माने वो जिस जगह रहती थी जो कि उसका घर था, तो वहां जिस तरीके से फिट होती थी एकदम ठीक उसी तरीके से वो उस नई दुनिया में भी, जो सुंदर दुनिया है, जो रंगीन दुनिया है, जो कलरफुल दुनिया है, जो कि एग्जॉटिक, डिसेंट और इंटरेस्टिंग लोगों की दुनिया है, वहां पर भी वो उतनी ही ज्यादा एट होम होगी, उतनी ही ज्यादा कंफर्टेबल होगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो ये भी महसूस करती थी कि ऐसी दुनिया एकदम एक्सपेक्टेंटली उसको वेट कर रही है, उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है, उसके अराइवल की प्रतीक्षा कर रही है बेसब्री से। और वो अपने कल्पना में ये देखा करती थी कि अपने भाई के साथ वो बाइक पे राइड करती हुई वहां पर पहुंचती है। वो स्वयं एक येलो ड्रेस पहनी है और जिसपे एक प्रकार का केप पीछे से लहरा रहा है, और उसका भाई शाइनिंग ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए है। और जब वो वहां पर पहुंचती है मोटरसाइकिल से तेजी से, तो वहां पर लोग ताली बजा करके उसका स्वागत करते हैं, उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। तो ये थे सोफी के सपने, और उसके ड्रीम्स में वो अपने आप को किस रूप से देखा करती थी। सोफी चूंकि अपने भाई की और करीबी और नजदीकी बनना चाहती थी, और उसका पर्पस ये था कि वो उसको उसके सपनों के संसार में कभी न कभी जरूर घुमाने लेकर के जाएगा, लेकिन चूंकि उसका भाई वो कभी उसको लिफ्ट ही नहीं देता था, इसलिए सोफी उसके नजरों में भी इम्पोर्टेंट बनना चाहती थी। और इसलिए सोफी अचानक उसका भाई जो चुपचाप अपना काम कर रहा था उसके बीच में पहुंच करके चुप्पी तोड़ती है, और उसने उससे ये कहा कि वो आज डैनी केसी से मिली। डैनी केसी उस समय का राइजिंग फुटबॉल स्टार था, और वो पूरी फैमिली डैनी केसी की एक बहुत बड़ी फैन थी, और डैनी केसी से मिलना वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे किसी ने किसी सुपरस्टार से हाथ मिलाया हो या उससे मिल करके आया हो, तो वाकई में ये परिवार के लिए या आसपास के लोगों के लिए, जान पहचान के लोगों के लिए एक बड़े प्राइड की बात होती है। उसी तरीके से अगर वो डैनी केसी से मिली होती तो वाकई में उस पूरे परिवार के लिए ये बहुत गौरव की बात होती और प्राइड की बात होती। तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट साबित करने के लिए परिवार वालों की निगाह में, खासतौर से जोफ की निगाह में, उसने ऐसा कहा कि वो डैनी केसी से मिल करके आ रही है। हठात जोफ को भी ये विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, ये तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये वाकई में देखने में तो लगता है, ये सुनने में तो लगता है कि मजाक है, ऐसा नहीं सच है, लेकिन वाकई में ऐसा ही हुआ, और वो डैनी केसी से मिल करके आ रही है। जेफ के और प्रश्न करने पर उसने बताया कि कैसे उसकी मुलाकात हुई। वो बताई कि वो लौट रही थी और वो रॉयसीज विंडो के पास खड़ी थी कि अचानक कोई उसके बगल में आकर के खड़ा हो गया, और जब उसने देखा तो उसने महसूस किया कि ये और कोई नहीं था बल्कि डैनी केसी था। उसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए जेफ ने पूछा कि अच्छा, तुम बताओ कि कैसा लगता है। तो उसने उलट करके प्रश्न किया कि जैसे तुम नहीं जानते कि कैसा लगता है। उसने कहा, नहीं, वो वाली बात नहीं, जैसा हम लोगों ने टेलीविजन में देखा है या जैसा दूर से मैचेस में देखा है वैसा नहीं, वो नजदीक से कैसा दिखता है। और सोफी ने एक डिस्क्रिप्शन उसको दिया कि उसके हरी हरी आंखें थी, जेंटल आईज थी उसकी, और वो इतना लंबा नहीं था जितना कि तुम सोचते हो। और साथ में उसने कुछ उसके दांतों के बारे में भी बतलाना चाहा, लेकिन फिर उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। इतना कुछ उसने डिस्क्रिप्शन डैनी केसी का जोफ के सामने प्रेजेंट किया। अब जोफ जो कि पहले विश्वास नहीं कर रहा था, उसे कुछ ये बातें ठीक ठीक लगने लगी, क्योंकि जो भी उसका डिस्क्रिप्शन था वो शायद मैच कर रहा था डैनी केसी के फीचर्स के साथ। इसके बाद जोफ अपने फादर के रूम में सोफी के साथ आ जाता है और अपने फादर को
भी ये खबर शेयर करता है उनके साथ कि सोफी डैनी केसी से मिलकर के आ रही है। लेकिन चूंकि फादर, मदर और बाकी के परिवार के लोग, यहाँ तक कि जो भी यही समझता था कि वो वाइल्ड ड्रीमर है और इसी तरीके से ड्रीम करती है और इसी तरीके से कहती है और बहुत गप मारती है और बहुत सारी चीजों में झूठ बोलती है, लेकिन फिर भी चूंकि एक ही एज ग्रुप के होने के कारण जेफ को तो थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास होने लगा था। लेकिन फादर सुनते ही एकदम कंटेम्पचुअसली उसकी तरफ देखा, उसकी निगाह से एकदम ऐसी निगाह से, तुक्ष निगाह से उसकी तरफ देखा जैसे कि वो समझ गया कि वो फिर से झूठ बोल रही है। खैर उसने ये कहा कि मैं भी एक समय एक आदमी को जानता था जो कि टॉम फिनी को जानता था। टॉम फिनी इसके पहले दौर का एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टार था। लेकिन जेफ को टॉम फिनी की ग्रेटनेस से क्या मतलब, क्योंकि वो बीते दौर का स्टार था और जेफ तो था फैन डैनी केसी का, और इसलिए दोनों बाप बेटे में कुछ कन्वर्सेशन चलने लगा। जेफ हमेशा फेवर कर रहा था डैनी केसी का कि डैनी केसी भी कम बड़ा स्टार नहीं है। लेकिन फादर एक मेच्योर्ड आदमी थे, वो समझते थे कि कुछ एक गेम्स में सक्सेसफुल हो जाना किसी को इतना बड़ा स्टार नहीं बना देता, और गेम्स में हमेशा बने रहने के लिए एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। और इसलिए एक बहुत बढ़िया बात जेफ के फादर कहते हैं कि वो चूंकि अभी बहुत ही यंग है और आज के दौर में यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो वो अच्छा खेल रहा जरूर है और अच्छा हमेशा बना तभी रह सकता है जबकि वो थोड़ा दिमाग से काम करे। इन द वर्ड्स ऑफ सोफीज फादर, इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर देन देयर इज नो डाउट ही विल मेंटेन हिज परफॉर्मेंस एंड ही विल रिमेन great as he is today. And Sophie, who was listening everything very quietly, all of a sudden spoke before all of them that Danny Casey was going to buy a shop. When father heard once again Sophie speak like this, he spoke angrily. Where did you hear that? And Sophie said that he told me. In this way, Sophie told her father also. She confirmed her father that she met Danny Casey. When father heard this, he muttered something inaudible and dragged himself round his chair and spoke. This another of your wild stories? लेकिन इस बार सोफी ने आंसर नहीं दिया, बल्कि उसके बदले जेफ ने उसका फेवर लेते हुए कहा कि she met him in the arcade, father, and after that he told him the complete story how it all happened. But again, father was an experienced man. He knew that there was no truth about it. And so he warningly told Sophie that one of these days you are going to talk yourself into a load of trouble. And when Sophie wanted some confirmation from Jeff, he added further, her father added further, that Jeff won't believe you though he would like to. माने अगर वो चाहे तो भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। हालांकि जेफ को थोड़ा सा एक बार विश्वास हो भी रहा था, लेकिन जब फादर ने ऐसा कहा तो लगता है जेफ का विश्वास भी हिल गया फिर, और उसी को पुख्ता करने के लिए जेफ के कमरे में एक बार सोफी फिर से जाती है। लेकिन इस बार जेफ नहीं मानने वाला था। उसने सोफी को समझाना शुरू किया और उसने कहा कि सोफी, यू डोंट बिहेव लाइक दिस बिकॉज यू आर स्टिल अ स्कूल गर्ल एंड केसी, डैनी केसी, अ बिग स्टार, ही मस्ट हैव strings of girls behind him, and if you act like this, if you dream of Danny Casey, then obviously you are going to meet with disappointment and nothing else. इस पर सोफी ने ये कहा कि नहीं, डैनी केसी इस किस्म का लड़का नहीं है, वो तो एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव वाला लड़का है, और जब उसकी मुलाकात मुझसे हुई तो वो और जो प्लेयर्स हैं या और ऐसे जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी तरीके से उसने नहीं बिहेव किया जैसे कि वो फ्लर्ट किस्म के हो सकते हैं। ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव का, उसने मुझसे बात भी नहीं किया, बल्कि उससे बात करने की शुरुआत मैंने ही किया। जब मैंने देखा कि ये डैनी केसी था तो मैंने लिटिल डेरेक के लिए उससे एक ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन संजोग कुछ ऐसा था कि न तो उसके पास पेन या पेपर था और न ही मेरे पास, तो बल्कि उसने ये कहा कि अगर मैं चाहूं नेक्स्ट वीक उससे मिलना तो वो मुझे एक ऑटोग्राफ देगा। लेकिन इतना सुनने के बाद भी जोफ का विश्वास पक्का नहीं हुआ कि
उसकी सिस्टर सोफी सही ही बोल रही थी और वो यह कहते हुए अपना लेदर जैकेट निकाल करके पहन करके निकल गया एज इफ ही वुड एवर शो अप, जैसा कि वो इनसे मिलने आ ही रहा है। सोफी अपने भाई को जाते हुए देख रही थी। वो टॉल था, स्ट्रांग था, डार्क फेस का था और वो सोच रही थी कि थोड़ा सा अगर वो अपने अपीयरेंस पे ध्यान दे तो वाकई में उसका भाई एक बहुत ही हैंडसम यंग मैन था। लेकिन फाइनली जब वो प्लेस छोड़ रहा था तो जफ ने एक और स्टेटमेंट दिया और वो ये था कि इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड। मैंने एकदम अविश्वसनीय सी बात वो कर रही है। वो डैनी केसी से मिली और ऐसा कहते हुए वो वहां से निकल गया। After this episode, A.R. Barton gives another description. She tells us that this family, that is Sophie's family, was a great fan of watching football match. Particularly, they supported United's team. And every Saturday they went to see the match between United and the other team, whichever it could be. And it was like a pilgrimage for them. So the next Saturday, they all went to see the match between United and the other team. And in this match, United won by 2 to nil, and the final goal was hit by their favorite player named Danny Casey. यूनाइटेड की जीत से पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी। सोफी के फादर इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले जाते हैं। जफ अपने फ्रेंड्स के साथ इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है एंड सोफी with her brother returns back home on a bus. On the bus there were other passengers and one of them was an Englishman and he wished that Danny Casey would be an English instead of his being an Irishman. घर आकर के डेरेक अपनी मदर को बताता है कि आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतने जा रही थी और इस तरीके से पूरी की पूरी फैमिली यूनाइटेड के मैचेस को एंजॉय करती थी और ऐसा लगभग हर सप्ताह होता था। अगली सप्ताह अचानक सोफी को जैंसी मिल जाती है और उसने सोफी से प्रश्न किया कि ये सब क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि मेरे फ्रैंक उसका ब्रदर था, फ्रैंक वॉज द ब्रदर ऑफ जैंसी, और उसने कहा मेरे फ्रैंक को तुम्हारे जुफ ने यानी तुम्हारे ब्रदर ने ये बताया कि तुम डैनी केसी से मिली। सोफी एज सुन एज शी हर्ड शी फेल्ट स्टार्टल्ड, उसको लगा कि ये क्या हो गया। ये एक झटका सा उसको महसूस हुआ क्योंकि उसने जो कुछ भी जफ को बताया था वो यह समझ करके बतलाया था कि ये बात जफ अपने तक ही सीमित रखेगा, वो बाहरी लोगों को ये सारी चीजें नहीं बतलाने जा रहा। लेकिन अचानक जफ ने ऐसा क्यों कर दिया उसको समझ में नहीं आया। सोफी जानती थी कि जैंसी एक ऐसी किस्म की लड़की है जो कि दूसरे लोगों के मामले में अक्सर ताक झांक किया करती। जैंसी वॉज अ नोजी गर्ल. Sophie was afraid that if this news reaches to Jancy, which was an awkward girl, gawky, the term she has used for her. And so Sophie feels that if this thing, or tell anything, for example, gawky Jancy, and the entire world, entire neighborhood would come to know. And so she was really very angry with Jeff. That was meant for Jeff only, but he disclosed this, and now through Frank it has reached to Sophie as well, and this might create a problem for her. And so Sophie said that, look, Jancy, this is a secret, and I hope you are not going to tell it to anybody, because if my dad comes to know about all that, he would really be very angry. Sophie wanted to take a promise from Jancy that if she comes to know about this fact, then she would not disclose this to anybody else. And so did Jancy. She said that she was not going to say this to anybody. But during the talk, at least one thing Sophie understood, that although Jeff had told Frank that Sophie met Danny Casey, but probably he had not told Frank about the date bit, and so she said that it was just a little thing really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good. Only this much. But for Jancy, even that much was enough, because she didn't have that opportunity even. And so she wished Jesus, I wish I would have been there. That is,
She wanted herself to be there, maybe with Sophie, maybe without Sophie, but she too wanted to see Danny Casey somehow. जैंसी की इस इंक्वायरी के बाद एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया कि जिफ जो टोटली अविश्वास कर रहा था, पूरी तरीके से ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि सोफी डैनी केसी से मिली। इस कन्वर्सेशन के बाद सोफी को ये उम्मीद हो गई कि हो न हो जिफ को अभी भी थोड़ा ही सही विश्वास है कि वो डैनी केसी से मिली थी। सो ऑल्दो शी न्यू दैट द ड्रीम्स are totally baseless, false, but still that false dream she wanted to live knowingly. And therefore, that very evening when it became dark, she walked by the canal alongside a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the God across the water, and it was away from the unceasing drone of the city. ये एक ऐसा स्थान था जहां पर बचपन में वो खेला भी करती थी, और वहां पर एक एकांत में एम ट्री था, और वो महसूस ये करती थी कि दैट दिस प्लेस इज क्वाइट सूटेबल फॉर द लवर्स, and this place is quite suitable for the meeting of this kind. And therefore, at that place, she went and sat down and she started imagining that Danny Casey is now coming. Again, it would be in the fitness of the things to tell that although she knew that Danny Casey was not coming, but still she imagined his coming. And in her imagination, she was getting excited also. In this way, in the excitement, in the wait, some time elapsed that is past. But as she knew, she had never to come. So she started, after some time, balancing her excitement with the idea of his not coming. माने उसका आने की खुशी, और उसे चूंकि मालूम था कि वो नहीं आने वाला था, तो उसके ना आने का जो टेंशन या गम होता या पेन होता, उससे उस खुशी को वो बैलेंस थोड़ी देर में करने लग गई। कुछ देर में उसकी पीड़ा, उसके ना आने की, उसको वो महसूस करने लग गई। आई फील द pangs of doubt stirring inside me. I watch for him, but still there is no sign of him. I remember Jeff saying he would never come and how none of them believed me when I told them. अब उसको ये लगने लग गया कि चूंकि उसको आना तो था नहीं, और जेफ को और बाकी लोगों को, बाकी फैमिली मेंबर्स को वो हमेशा प्रूव ये करना चाहती थी कि वो झूठ नहीं बोलती, वो जो भी सपने देखती है वो एकदम बेसलेस और झूठ नहीं है। तो अब चूंकि वो आएगा नहीं, तो कभी भी उनके नजरों में वो सच्ची नहीं बन पाएगी, और वो सोचने लग गई कि जब बतलाएगी उन लोगों को, कि खास तौर से जोफ को, कि वो नहीं आया, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को बैलेंस किया, ठंडा किया, और उसने सोचा कि अब लोगों का क्या, वो क्या क्या सोचते हैं, उनको कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है। तो वाकई में जब ये मेरे और डैनी केसी के बीच की बात है, तो दूसरे ये कैसे जान सकते हैं कि वो आया कि नहीं आया, या उनके बीच में क्या बातचीत हुई और क्या हुआ। तो अब इसको मैनेज करना ये उसके हाथ में है, और उन लोगों को कैसे बतलाना है, क्या बतलाना है, वो इसको खुद डिसाइड करेगी। तो ये था सोफी का ये थॉट कि वो घर वालों को किस तरीके से मैनेज कर लेगी। लेकिन हकीकत तो यही था कि वाकई में सही मायने में वो कभी भी अपने आप को उनकी नजरों में सही प्रूव नहीं कर पाएगी। आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी। यह फीलिंग उसको अपने अंदर महसूस हो रही है कि ऊपर से झूठ बोल करके उनको चाहे कुछ भी समझा बुझा ले जाए, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगी, खुद को कैसे सेटिस्फाई करेगी कि वाकई में वो भी कभी ठीक थी, क्योंकि डैनी केसी को तो आना नहीं था। और इस तरीके से वो अपने थॉट्स के अप एंड डाउन को रीड कर रही थी और बैलेंस कर रही थी। बट रेजिग्नेशन वॉज नॉट सर्टन थिंग। माने रेजिग्नेशन हियर इट मीन्स कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, इसको स्वीकार कर लेना कि डैनी केसी को नहीं आना है, यानी ये एक्सेप्टेंस कि वो नहीं आएगा और उसको इसी के साथ जीना है, ये अचानक नहीं हो सकता था, और इस कारण से वो उदास हो गई, और उसको ये बहुत बर्डन सम लगने लगा कि कभी भी वो अपने आप को अपने फैमिली मेंबर्स की नजरों में अच्छा साबित नहीं कर पाएगी। एंड दिस बर्डन ऑफ सैडनेस वाज रियली वेरी हार्ड टू कैरी फॉर सोफी। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि वाकई में उसे करना क्या है, और फिर वो सारी चीजों को अपने दिमाग में एक पिक्चर के रूप में देखने लग गई, जैसे उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह तैर रहा था कि कैसे वो अपने
घर वालों को, खास तौर से जोफ को समझाएगी, और वो सारा का सारा सीन उसने खुद क्रिएट किया, और फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब उसे वापस घर चलना चाहिए. सो शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स ऑफ द स्ट्रीट. आउटसाइड द pub, she passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. जब वो जाने लगी तो उसको अच्छा लगा जब उसने देखा कि फादर की बाइसिकल पब के वॉल के अगेंस्ट टिका करके लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी. तो उसे ये एटलीस्ट राहत मिली कि कम से कम जब वो घर पहुंचेगी तो फादर के व्यंग्यवाण से या फादर के गुस्से का सामना एटलीस्ट उसे नहीं करना पड़ेगा. और इस तरीके से चलते चलते वो फिर से वो आर्केड के पास, रॉयसीज विंडो के पास पहुंची, और फिर से उसने कल्पना में ही, इमेजिनेशन में ही डैनी केसी को फिर से देखा, और उसी कल्पना में उसने उससे कन्वर्सेशन भी किया. एंड इन दैट कन्वर्सेशन शी आस्क्ड फॉर एन ऑटोग्राफ. She said, I wonder, would you mind signing an autograph? And he says, I don't seem to have a pen at all. She realized herself that she too didn't have either the pen or the paper. So she speaks to him, my brother will be very sorry. And afterwards, she waited there alone for some time, and then she started feeling his soft melodious voice, the shimmer of green eyes, and she started once again looking at his full profile, no taller than herself, no bolder than herself. He was a prodigy, a talented boy, a player, an innocent boy, the great Danny Kiss. And then once again she reaches to the stadium, particularly the last Saturday, the match which she had seen. She saw him again goes past lumbering defenders, goalkeepers, and she heard the 50,000 spectators. They all had held their breath when he was hovering momentarily over the ball, and then all of a sudden there was an explosion of sound in the stadium as he struck the ball crisply into the goal. There was the sudden thunderous eruption or outburst of exultant approval or appreciation or approbation. That is, all of them suddenly shouted in appreciation when Danny Casey hit the goal. And all this she pictures in her mind. Further, I will provide you certain videos on important questions and answers of this lesson, and this you will be getting very shortly before your board exams. If you have liked this video, please share with your friends. Do like and comment. And so far, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe it now. Thanks for watching. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.